So, very, very good morning, everybody. You are listening to the Telegram live class, Mixnit MDS, and this is brought to you by this podcast is brought to you by www.dentalexams.in. I'm your host, Dr. Mohan, and we will be actually covering few of the topics. प्रस्तों के ही हम स्टार्ट करना रहे अपन थोड़े से थोडासा टाइम लागेल मला कारण ते ॲक्च्युली रेडी आहे पण मला ते ॲक्च्युली पर्टिक्युलर डिफरंट जे टेलिप्रॉम्प्टर नावाचं सांगितलं मी एक ॲप की त्याच्यामध्ये सिम्पल जे काही टेक्स्ट असेल कॉपी पेस्ट केलेलं किंवा लिहिलेलं यू कॅन जस्ट सिम्पली स्क्रोलिंग सारखं एक त्याच्यावरती येतं अँड यू कॅन सिम्पली डू व्हॉट एव्हर यू कॅन जस्ट लाईक रेकॉर्ड व्हिडिओज ऑडिओज everything will be just all right, but still you can simply read out of that ना. तो that was I was just thinking कि वो काफी काफी अच्छा ऐप भी है let's say. Basically it's used in like news studios जो रहते हैं वहाँ पे it's like very good thing या कोई भी speeches होती है लंबी अच्छी खासी. So in those cases that is useful. So yesterday probably we have also covered few of the orthodontic topics. We are surely going to cover that as well. तो प्रोस तो रहने वाला है इसमें ऑर्थो रहने वाला है थोड़ा सा स्पेसिफिक अप्लायंसेस है दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड सेफेलोमेट्री विल बी आल्सो देयर. कुछ टॉपिक्स उसमें से we may have left we would be actually going to just like cover that but time बहुत बार कम होता है तो simply just like feel कि बाद में कर लेंगे that sort of. So let's see. तो काफी लंबी भी है स्क्रिप्ट. Yesterday I was just not surprised, but recently जैसे मैंने कहा कि वो एक एवरियन का केस हुआ था and we have to actually give a temporary prosthesis ना. तो patient was not happy as such because she was just looking for something कि she was very feeling good about something कि उसकी orthodontic treatment उसके friends के जैसे start हो जाएगी तो she can just like be a part of that separate special community ना which is having actually ortho के braces. But suddenly वो avals होने के बाद में she is like procline था वो निकल गया and she is replaced tooth है उसे which is making her profile very good. पहले से थोड़ा सा ज़्यादा convex था. It's looking very normal right now. Her mother is very happy. She is happy just because she won't be actually taking her daughter every 15 days ना तो she has lot of work to do तो वो उसकी वजह से खुश थी basically. And as I already mentioned कि उसको ट्रीटमेंट्स तो काफ़ी उसकी प्लान जो है काफ़ी लंबा है. शी हैज टू डील विथ delayed erupting canine है that we surgically expose that and उसे नीचे जल्दी लाना पड़ेगा तो स्माइल विल बी अगेन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो आफ्टर हर एग्जाम्स वी विल बी एक्चुअली डूइंग दैट थिंग. So pedo is a very let's say diverse subject and faculty. इसमें इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं समटाइम्स.
but that's okay. Like it's ready now. But one thing I mentioned ना कि मैंने इसकी मदर को कहा था कि if she is going for competitive examinations गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बार ऐसे होता है simply कि there are marks also no for dental तो अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ कोई से भी रहे इवन इम्प्लांट्स आ गए ना इवन दे इफ दे लुक वेरी नेचुरल कि उनको निकाला नहीं जा सकता आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता बट सिंपली एक्सरेज में वो निकल के ही आते हैं तो इम्प्लांट्स अगर रहते हैं तो बहुत बार मार्क्स शायद कम हो सकते हैं तो शी वॉज अगेन थिंकिंग अबाउट हर डॉटर फ्यूचर 20 साल बाद तो वाई वी आर गोइंग फॉर ऑर्थो ट्रीटमेंट ना पहले एफपीडी कर इम्प्लांट कर देते हैं so she, being mother she constantly thinks about the child. So here is good news again, and I'm going to just like share that thing. Everybody will be very happy because of number and because of the title also. So MPPSC Madhya Pradesh Public Service Commission actually is going to recruit actually dental surgeons almost so good news is that let me share that thing. It's here. मध्य प्रदेश में डेंटिस्ट की लगभग 386 पोस्ट आर वैकेंसीज जो है वो पब्लिश की गई है बट डेट्स आर क्वाइट लेट से काफी सामने है तो इट विल बी आल्सो अफेक्टिंग few of the like other exams we do have in the same let's say year or same schedule में बट एडवांटेज ये है कि सिंपली एक ही आपको प्रिपरेशन में we're going to cover the same syllabus but for different opportunities. तो ये अच्छा खासा गोल तो हमारा दिस ईयर का हो गया है
So it's saying that recruitment of the advertisement for the dental surgeon 2024 डेट उसकी 31st थी, इसके लिए 24 में आया है वो, बट लास्ट डेट श्योरली 20 मार्च है this year. उसकी भी डेट प्लीज उसकी भी लास्ट डेट शायद मार्च में। दोनों चीजें यहाँ पे शेयर की गई है, तो you can just simply the whole group for the next dental PSC across India और MPPSC की सेपरेट एक ग्रुप है, उसमें टॉपिक है। सो जैसे लास्ट टाइम महाराष्ट्र की 2015 में शायद कुछ 186 पोस्ट ने की थी, आफ्टर दैट 280 प्लस कुछ पोस्ट 2022 में निकली थी, एंड आफ्टर दैट टाइम ऑलमोस्ट 400, लेट्स से कि 386 तो काफी बड़ा नंबर हो गया ना। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि इतने लेट्स से कि ज्यादा नंबर में they are going to recruit dental surgeon because it depends upon like state also, no? The state ज़्यादा बड़ा है, simply surely that is going to be, वो हो नहीं वाला है simply, state जब बड़ा रहता है obviously, तो these kind of vacancies are there. So we may have some of the previous year questions जो थे हमारे, especially for the MPPSC. But maybe if I can remember, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था एमपी का, शायद 300 एमसीक्यूज थे, क्वाइट लेट्स से गुड अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज, इतने सारे 3 घंटे की तो रहेगी ही मिनिमम वो एग्जाम। उसका पैटर्न एमपी का शायद शायद उसमें सिर्फ डेंटल के ही रहेगी ऑलमोस्ट। I'm going to also share the same thing, Amazon पे वो previous year क्वेश्चन पेपर शायद है, या ग्रुप पे भी, नॉट ग्रुप बट इस चैनल पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो, पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद कोई रिसोर्सेस अवेलेबल हो फ्री वाली, दैट सिंपली गो थ्रू दैट हैशटैग एमपीपीएससी करके आप उसको सर्च कर सकते हो। और अमेजन पे तो आपको पता है नेक्स्ट डेंटल एग्जाम उसमें डेंटल कॉम्पिटिटर नेक्स्ट डेंटल एग्जाम्स, इन दोनों मैगजीन्स के न्यूज लेटर के इश्यूज पब्लिश किए गए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और एमपीपीएससी, मणिपुर के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। ओके,
कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू दैट। उसके रजिस्ट्रेशन फीस भी है, एप्लीकेशन फीस ऑलमोस्ट 350 और द रिजर्व कैटेगरी, और ओपन के लिए देयर इज 500। एंड स्टार्टिंग शायद 21 फेब से है उसकी। एंड जो लास्ट डेट है फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस दैट इज मार्च है शायद, थर्ड थर्ड मंथ जो है वो। एंड आफ्टर दैट मे बी विद इन अ मंथ, मई जून में शायद उसकी एग्जाम होगी। बस रिसेंटली जैसे पीसीएमसी में हमने देखा था, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट की लॉट ऑफ एप्लीकेशंस वुड बी देयर एक से रिटर्न एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ सकता था। बट somehow we don't know the exact reason that applications के regarding कुछ complications थे, that is वो apply नहीं कर पा रहा, तो persons were actually visiting the YCMH। तो शायद वो बहुत कम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, और मे बी वेरी वेरी से आप सेलेक्ट हुआ है। But the also thing is that कि सबका focus right now is only next NEET MDS. So lot of people won't be actually entering this। एक दो तीन या 6 महीने की भी अगर कुछ चीजें रही इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, तो इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ लेट्स से कुछ डिस्टर्बेंस जैसा ही होता। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड हैव स्किप्ड दैट। वैसा एक रीजन है उसका। पे स्केल शायद उतना ज्यादा नहीं है जितना एमपीएससी का था डेंटल सर्जन्स के लिए। सो वी वेर अबाउट टू स्टार्ट, कि हम बस स्टार्ट ही करने वाले थे, सिर्फ ये हमारा बूस्टर। और सडनली लाइक गुड न्यूज कि इतने सारे वैकेंसीज आ गई है फॉर डेंटल सर्जन्स। वी विल बी अगेन जस्ट सिंपली ट्राइंग टू डू द सेम, कि थोड़ा सा पॉडकास्ट, थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा प्रोफेशनल, बिकॉज देयर इज like a very fine line between personal and professional person. That was the thing probably. Like few of the people, ladies, they are actually trying to laugh। काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है, लाफ्टर क्लब जैसा होता है। तो just listening to the like the sound, the voice की हंसी, उसकी वजह से मुझे भी हंसी आई, and that made them कि उनको भी ज्यादा हंसी आ रही थी। So that is like a contagious thing, but it's very good because माइंड तो करना ही चाहिए वैसे। एंड जस्ट लाइक यस्टरडे, आज थोड़ा सा ट्रीट मैंने ज्यादा बड़ी ली है, बड़ा वाला पैकेट है, बिकॉज दोस पपीज एक्चुअली दे आर गेटिंग लाइक थोड़े से ज्यादा ही फास्ट बड़े हो रहे हैं, तो उनको तीनों मिलके, चारों मिलके एक छोटा सा पैकेट, आई थिंक लाइक दैट्स नॉट फेयर। तो आज थोड़ा सा बड़ा ले लिया है मैंने। तो लेट्स स्टार्ट की जो हम बूस्टर हमने क्रिएट किया है स्क्रिप्ट, मोस्टली वो हम अभी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो वेलकम टू द लाइव। सो मैग्जी
मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशंस, वहां से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशंस refer to the spatial relationship between the maxilla and mandible, and these are critical in fabrication of dentures, prostheses, and other dental appliances to ensure proper functions, aesthetics, and patient comfort. So, what are the different types of these maxillomandibular relations? Okay, the first is a orientation relation, which defines the position of the maxilla relative to the cranial base. So maxilla का cranial base से relation, okay, and it's important for mounting maxillary cast on an articulator using a face bow. Okay, एक orientation हो गया because mandible is like movable ना, maxilla is fixed cranial base को, तो उसमें maxilla ही important है. Okay, then we have vertical relations, which refers to the vertical dimension, that is a distance between maxilla and mandible. Okay, उसके types हो सकते हैं vertical dimension of occlusion, that is VDO, that is distance between the teeth but in occlusion. Then we have vertical dimension at rest, that is VDR, that is the distance between, like when mandible is in relaxed position. Okay, थर्ड वाला है इंटर ऑक्लूजल स्पेस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट एंड वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन. तो इट्स यूजुअली 2 to 4 मिलीमीटर. सो इंटर ऑक्लूजल स्पेस जो होती है इट शुड बी ऑलवेज 2 to 4 मिलीमीटर अगर वर्टिकल रिलेशनशिप नॉर्मल है तो. देन उसके बाद में है आफ्टर लाइक ओरिएंटेशन वर्टिकल वी हैव हॉरिजॉन्टल रिलेशंस. सो इट रेफर्स टू द anteroposterior and lateral positioning of the mandible relative to the maxilla. Okay, sorry. So in which there is centric relation CR and eccentric relation. So what is a, like, let's say horizontal type है, but कौन सा है centric relation? So it is the most retruded position of the condyle in the glenoid fossa independent of the tooth contact. So that is centric relation, a type of horizontal maxillomandibular relation. And eccentric वाला क्या है? So any position other than the centric relation. So it can be in the position of protrusion और lateral excursion के बीच में जो होता है, that is eccentric. While most retruded position है condyle की in the glenoid fossa, that is centric relation. ये दोनों horizontal relations में आ जाते हैं. Okay. Then there are also functional relations which are concerned with the mandibular movements during functions like speech, chewing, and swallowing. So orientation, vertical, horizontal, and functional. So these are the basic types of maxillomandibular relations. Okay. इसके बीच में हमने फेसबुक भी थोड़ा सा पढ़ा है because these type of equipments, instruments, या tools will be required to measure exact these relations. Okay. So Facebook is an instrument used to transfer the spatial relationship of the maxilla to the cranial base. Okay, from the patient to the articulator. So it ensures accurate mounting of the maxillary cast for functional and aesthetic restorations. Okay. So there are different types of phase bows. First is arbitrary phase bow. It uses approximate anatomical landmarks, that is external auditory meatus, to locate the hinge axis. Like it's very quick and easy to use, but it's less accurate. So arbitrary phase bow is quick and easy to use, but it is less accurate, and it is suitable for the routine cases. Then we have kinematic phase bow, which locates the true hinge axis by finding the rotational axis of the mandible.
So it is highly accurate, but time consuming and complex also. And it is indicated in full mouth rehabilitation. So kinematic phaseo locates the true hinge axis by finding the rotational axis of the mandible. इस पे एमसीक्यू पूछा ही गया है बहुत बार, ठीक है. आर्कॉन, नॉन आर्कॉन, उस पर्टिकुलर इसमें आर्टिकुलेटर में या फेसबो में कौन सा कंपोनेंट कौन से इसको ज्यादा रिलेट करता है, मैक्सिलर टू मैंडिबल और वाइस वर्सा. देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑब्वियसली रहने वाले हैं फेसबो के. सो देयर इज अ बाइट फोर्क, देयर इज अ यू शेप्ड फ्रेम, condyle rods or arms, and locking screws. So bite fork, which is a component of the phaseo, it records the maxillary occlusal plane and relationship. U-shaped frame, which supports the phaseo and it aligns with anatomical landmarks. Condyle rods and arms, third wala hai, which aligns the instrument with the hinge axis or external auditory meatus. And last, locking screws, which secure the components, all the other components in place. So bite fork, U-shape frame and condyle rods or arms, उनको एक जगह पे place करती है locking screws. उसके बाद में there is a simple procedure होती है for using a phaseo. So preparation is the first step. Place a registration material, that is wax or compound, on the bite fork and inserting the bite fork into the patient's mouth to record the maxillary occlusal plane. After that, we have alignment. So positioning the phaseo frame parallel to the interpupillary line or Frankfurt horizontal plane, which aligns condyle rods with the hinge axis or external auditory meatus. Preparation हो गया, alignment हो गई, then there is a fixation. So it secure the bite fork to the phaseo using screws, and it also record the position and remove the phaseo also. Okay. Then we have transfer to articulator. So which attaches it's nothing but the attachment, the phaseo to the articulator and mounting the maxillary cast. So I'm on the track. वॉक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा चार्जफुल ही है, बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली वेरी, लेट्स से रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है थोड़ी सी. पर्टिकुलरली इस एंड पे जब मैं जाता हूँ तो इट्स क्वाइट, लेट्स से थोड़ा सा स्टीप हो जाता है धीरे धीरे. शायद थोड़ी देर बैठने के बाद में यू विल ट्राई टू जस्ट लाइक रीड फर्दर. सो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है फेसबुक के फॉर एक्यूरेट occlusion, which ensures the restorations can mimic the patient's natural occlusion. Okay. Then we have functional harmony, which prevents occlusal interferences and TMJ disorders. Aesthetics भी काफी important है, because maintaining the correct orientation of the maxilla for a natural look. Then custom treatment, so essential in complex cases like full mouth rehabilitations जो होते हैं, और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस भी कभी कभी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है. लाइक ईयर रिप्लेस होती है, आई रिप्लेस होती है बहुत बार. ओके. सो हियर आर माय फरी फ्रेंड्स. एक ही एक ही दिख रही है सिस्टर. द बिग गाय एंड द अदर पीपल, आई डोंट नो वेयर दे आर. So the मदर शायद बहुत ज्यादा हंग्री है, उसे मैं कुछ खिला देता हूँ, सो दैट शी विल बी
happy also, and बाकी के दो. So this is a big guy. मिस कर रहा था उसे मैं. The other sister, brownie sister, or suddenly they came out of nowhere. You can just like simply आप इसे देख सकते हो. ये वाला कितना क्यूट है. So all of them are very active right now. बड़े हो रहे. Oops, oops, गिर गया वो. तो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं. लाइक वी नो कि मैंडिबुलर मूवमेंट्स एंड बेनेट शिफ्ट एंगल जो होते हैं, लाइक दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर एमसीक्यू पूछे जाते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग लाइक फॉर फंक्शनल occlusion, these are important because among these lateral movements involve the Bennett shift and Bennett angle, which are the key concepts in prosthodontics and occlusion studies as well. Okay. So opening and closing जो movement होती है mandible की, which occurs in the sagittal plane, hinge movement जो है वो. Then there is a protrusive movement, that is forward movement of the mandible. Then there is a retrusive movement, backward movement of the mandible, and lateral movements, that is side to side motion, which involves the working side and the non-working side condyles. तो मैंडिबुलर मूवमेंट्स ओपनिंग क्लोजिंग हो सकते हैं हिंज मूवमेंट में, प्रोट्रूसिव रिट्रूसिव हो सकते हैं, एंड लैटरल मूवमेंट्स भी हो सकते हैं मैंडिबल के. So in these movements, some terms are there. So Bennett movement or lateral shift, that is refers to the bodily lateral shift of the mandible that occurs during the lateral movements. Okay. अभी काफी दूर चले गए वो मॉम भी और बाकी के तीनों पपीज भी. सो उनका टेरिटरी शायद वो धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारी मॉम की बादशाहत कहाँ तक है, वो कहाँ तक. वी आर गोइंग टू जस्ट लाइक एक्सप्लोर, स्नीफ, जंप, प्ले. शायद वापस आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे वो, बिकॉज दे वुड बी वेरी फीलिंग स्केरी कि बाकी के नए लोग, नए व्हीकल्स. तो दे यूजुअली ट्राई टू जस्ट लाइक वो पीछे चले आते ही है. सो कैरेक्टरिस्टिक है बेनेट मूवमेंट का. सो इट अकर्स ऑन द वर्किंग साइड, that the side towards which the mandible moves. Okay, Bennett movement occurs on the working side, and the condyle on the non-working side moves medially and forward. Okay, and controlled by the ligaments and the morphology of the temporomandibular joint. So, what is the clinical importance of this Bennett movement, lateral shift? It impacts the design of the restorations, occlusal schemes, and articular settings. And it also maintains the functional harmony during the lateral excursion. तो जैसे मैंने कहा कि एक जो सिस्टर है सिंपल सी, she is just like running towards me, not me maybe, but she is back. तो वो शायद उस नई जगह को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी, शायद वो किसी चीज की तरफ भाग रही है. तो शी जस्ट लाइक गोइंग हियर एंड देयर. उसे पता है कि मेरा हाइड आउट यहाँ पे ही है, मेरा घर यहाँ पे ही है. मॉम शायद बाहर गई होगी शॉपिंग के लिए या कुछ खाना लाने के लिए, बट इट्स बेटर जस्ट लाइक बी हियर. तो वापस आ गई, वो पास आ गई. She knows me, my voice. और वो
but she never allows me to touch actually. That बहुत कंजर्वेटिव टाइप के है। एक गाय जो है शेर खान, वो एक्चुअली काफी काफी सिंपली मुझे टच भी करने देता है एंड अभी छुप गई है बेसिकली। शी इज क्वाइट शाय। एक देयर इज ऑलवेज समबडी इन द फैमिली की जो पीछे रह के सब चीजों की केयर करना धीरे धीरे सीखता ही है। शी इज मे बी वन ऑफ देम। बाकी हंटर्स टाइप के लगते हैं बिग गाय के साथ में वो छोटी सिस्टर भी गई है इसकी। तो मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशन फेसबुक, वो हमने सभी अच्छी काफी चीजें आज कवर कर ली है। आ, तो उसके बाद में बेनेट एंगल इज देयर। So Bennett angle is the angle formed by the path of the non-working condyle relative to the sagittal plane during lateral movements. Okay. So it is the angle, Bennett angle is the angle formed between the sagittal plane and the path of the non-working condyles as it moves forwardly and medially. So average value typically 7 to 15 degrees, but it varies among डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो पेरेंट एंगल की नॉर्मल वैल्यू 60 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक हो सकती है। सो इट इज अगेन एमसीक्यू एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सो सॉरी बेनेट एंगल। So TMJ morphology. So condylar inclination and the shape of the articular eminence, it can also affect the Bennett angle. And ligamentous constraint होते हैं, which determines the extent of the lateral movement. And sometimes cuspal inclines and foci जो depth होती है उनकी, that can also affect the mandibular part. So occlusal anatomy, ligamentous constraint and TMJ morphology, these are the factors affecting the Bennett angle. Okay. So measurement of Bennett angle. The Bennett angle can be measured using articulators. शायद इसे मैं एक बिस्किट डाल के देखता हूँ कि whether he will be interested in getting those biscuit treats. शायद उसकी शायद खा लेगी वो। She maybe trust nobody, nothing. She always हर बार एक्सप्लोर करती है, चेक करती है। And once she is like confirmed, she उसे trust है किसी चीज पे, then only after that वो किसी से पास जाती है, आवाज करती है, हट हट हट। I know like he can just like hurt her, ना? मुझे पता है कि उसकी mom जो है वो actually just she is the daughter is actually just simply looking at that guy as a her mother actually. तो जब भी उसे लगा कि उसकी मदर है तो दैट्स व्हाई लाइक वो उसे पता भी नहीं कि वो मेल है कि फीमेल है बट सिंपली उसे लगा कि ये मेरे जैसा दिख रहा है तो मॉम हो सकती है। बट दैट इज नॉट द थिंग। आई नो कि उसकी मदर और उसकी मावशी है पीछे, they always keep these kids or kids away from that guy. Maybe उसके नहीं है वो, maybe उसके होंगे, but like women don't trust men, bitches won't trust dogs, ना, that sort of thing. And दो इधर वाले तो like जैसे कि बिग गाय आपको मैं दिखा देता हूँ कि he is also just like running. शायद वो अकेला हो गया है, like maybe देख ही रहा है कि कोई है क्या आसपास पहचान वाला। And his sister is also there. So they are crossing almost 50, 20, 30 feet. पहले कुछ हाइड आउट में ही रहते थे and right now they are
trying to move, trying to run, trying to jump. तो इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ. ये वाला तो आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छा सा है, क्यूट सा है. इसकी सिस्टर अभी उधर उस साइड में है. तो इसका नाम मैंने शेर खान रखा है शायद, जैसा मैं बिग ब्रदर भी बुला सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टर इज एक्चुअली जस्ट वेटिंग. दो उसके दूसरी सिस्टर और ब्रदर भी शायद उसका कुछ पास में नहीं है, तो सिंपली शी इज जस्ट लाइक रनिंग टूवर्ड्स. इनको शायद कम्युनिकेट करना अभी आया नहीं है कि बार्क करते हुए हम पे एक दूसरे को बुला सकते हैं ना, दैट्स सॉर्ट. एंड व्हेनेवर आई जस्ट लाइक होल्ड हिम ना, ये काफी इतना चुपचाप से बैठ जाता है ना. अदर देन दैट अगर नीचे रहा तो काफी. समथिंग स्केर्ड हर. दूसरी वाली सिस्टर जो है वो अकेले होने की वजह से भी शायद शी वुड हैव जस्ट लाइक की. तो थोड़ी देर में हम बाकी का भी टॉपिक कवर करने वाले हैं सिंपली. तो से हाय, से हाय, हेलो. अब वो वाली सिस्टर जो दिखाता हूँ मैं आपको, शी इज मे बी क्राइंग और मे बी नॉट क्राइंग. या शी इज बार्किंग. स्नीफ भी कर रही है, वो हैप्पी भी लग रही है थोड़ी. दिस इज माई फेवरेट. ये वाला जो मेरा फेवरेट है एक्चुअली. ये probably understand me कि ये वाला जो है शिवर क्यों कर रहे हो. ये वाला हर रोज मिलने को आता है. ऐसा मॉम से भी ओळख आहे याची. आई याला असं म्हणत नाही, लहानपणी सांगतात ना लहान मुलांना की अनोळखी माणसांना भेटू नये, बोलू नये. यांची आई पण सांगत असेल की माणसांना अनोळखी नाही, कोणत्याच माणसांच्या जवळ जाऊ नको जोपर्यंत लहान आहे तोपर्यंत, नाही तर तुला ट्रक मध्ये गाडीमध्ये बसून घेऊन जातील. बिकॉज आय हॅव सीन लॉट ऑफ टाइम्स की काही लोक सिंपली घेऊन जातात उचलून, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको रेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज व्हेन दे आर लाइक पपीज ना, वो काफी काफी क्यूट हो जाते हैं. एंड व्हेन दे आर हेल्दी एवरीबॉडी जस्ट लाइक वांट्स टू हैव देम. बच्चों को तो ज्यादा ही लगता है, बट वंस दे स्टार्ट फीलिंग इल, खाने पीने का तो मैनेज हो जाता है, बट जब उनको कुछ डिसीज हो जाता है ना, तो आफ्टर पेटिंग देम, आफ्टर लाइक having that particular master slave owner that kind of thing, तो वो वापस फिर से उसके एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं. वंस लाइक दे आर लेट्स से कि इल, तो उनकी केयर कोई नहीं करता. फिर स्केबीज होता है उनको, लॉट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट्स हो जाता है या डेथ भी हो जाती है. दे सिंपली जस्ट लाइक थ्रो देम. ऐसा नहीं कि उसको प्रॉपरली ये किया जाए, बरी किया जाए. क्रीमेट लाइक क्लिनिक्स तो मैंने जैसे कहा कि डेंटल के क्लिनिक्स फॉर द कैनाइंस आई हैव सीन, बट बरियल साइट्स क्रीमेटरीज या ऐसे कुछ मैंने शायद देखे नहीं है. स्पेशली पपीज के लिए तो देखे ही नहीं है मैंने. इसको शायद थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बिस्किट डाल देता हूँ. कब शायद यस ही इज लुकिंग एट इट.
तो पता है कि बिस्किट इज अ थिंग कि उसके लिए ठीक है, यू कैन जस्ट सिंपली एंजॉय दैट। उसे पता है कि ये चीज खाने की ही है एंड अभी टीथ भी उनके काफी बड़े हो गए ना। इनिशियली तो रहते नहीं तो दे सिंपली गेट मिल्क, वो भी मदर से ही मिलता है इनको एज सच। मैंने भी कभी राइट नाउ दे आर क्वाइट बिग इनफ कि इनके दांत तो आ ही गए हैं ऑब्वियसली, दे कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट बाइटिंग समथिंग। सॉफ्ट वाले तो खा ही सकते हैं, बोन्स अभी फिलहाल नहीं खा सकते। बोन की ब्रॉथ भी मिलती है मुझे पता है, लिक्विड डाइट जो रहती है, एंड स्पेशली फॉर पपीज इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो मेजरमेंट ऑफ बेनेट एंगल तक हम आ गए थे, लेट में चेक कितना लंबा हो गया सेक्शन। और ज्यादा लंबा खींचा तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना। तो 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स आई कैन जस्ट लाइक सिंपली, मैं उसे कर सकता हूँ, उसे और एक बिस्किट दे देता हूँ। बोथ द सिस्टर्स दे आर एक्चुअली देयर, they may start running towards us. Yes, they are. Both have एक मार्क है उनको दोनों को, and right now all of the three brothers and sisters, big guy and other sister, they are just looking something, trying to it. ये पता नहीं कि ऊपर है, दोनों को मार्क है। And their mother, like what she is doing, I don't know. कहाँ पे घूम रही है? तो मैक्सिला, मैंडिबल, एडेंचुलस, डेंचुलस सभी हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आज। So just like talking to the person who have got already selected कि जिनका selection हो गया है MPPSC, MPSC की, talking to them is also very good thing for exam or before let's say interview, जितने भी कुछ चीजें होने वाली है। तो it will surely give a idea actually कि आपको वो आइडिया आपको दे सकता है।